Hello students and welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni and today we are going to start another topic in the chapter series Mechanism of Organic Reaction. So far we have discussed in this particular chapter aeronotations, types of bond fission, reagent substrates, types of reagents, types of organic reactions, energy considerations, reaction intermediates, carbocations as well. So now in the today's section we are going to discuss in detail carbanions. So if you have not watched the 3 videos that I have uploaded in this particular chapter series, I request you to first of all go through the link that I have mentioned in the description box below and then switch to this part of the chapter. Only then, for the better understanding of the further topics, you will be able to understand that what is exactly happening in the chapter. And if you will skip those particular videos and then switch to this part, you will not able to understand that what is exactly happening, right? So that is one thing about it, and without wasting any more time, let's just start the topic carbanion. Yeah. So just like carbocation, your carbanion is also short-lived, highly reactive chemical species. But difference lies in the fact that जो carbocation होते हैं आपके, they carries positive charge, ठीक है? और वही अगर आप कार्बानाइन की बात करोगे तो they will be carrying the नेगेटिव चार्ज, ठीक है? यहाँ पे जो कार्बन है आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इस केस में जो आपके पास कार्बन होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है. वील सी हाउ. ओके, so first of all what it is, chemical species carrying negative charge on carbon are called carbanions, ठीक है? And in these species the carbon carrying negative charge has 8 electron in its valence shell, ठीक है? कहां से 3 तो आ जाएंगे आपके, ये जो 3 बॉन्ड है यहां से 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ जाएंगे इन 3 बॉन्ड से, ठीक है? और एक जो आपके पास यहाँ लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, यहां से आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे और टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कार्बानाइन क्या है? ऐसा केमिकल स्पीशीज जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उस कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ठीक है? दैट इज वन थिंग. एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड chemical, highly reactive chemical species. Even though the carbon atom carrying negative charge has complete octet of electrons, the instability is due to the formal charge available on them. देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका जो कार्बानाइन है उसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद जो कार्बानाइन होता है they are the unstable intermediate. Okay, which is why it is happening. So क्यों ये unstable होता है? Because of the formal negative charge present on it. That is the reason behind that. Okay, now in the next section we will be seeing the preparation or generation of carbanion. देखो बच्चे सिंपल सा केस है, जिस तरह से आपने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन देखी थी वाया हेट्रोलिटिक क्लीवेज. हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या है इसे जानने के लिए आपको इस सेक्शन का फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है. व्हाट इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज ultimately? Okay, so what is carbanion? They are produced by heterolytic cleavage of a covalent bond in which leaving group departs without bonding electrons of covalent bond. अब देखो यहाँ आया डिफरेंस कार्बोकेटाइन और कार्बानाइन में, दोनों में होती तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज है, बट ये एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव और यू कैन से इट इज हियर एक्टिंग एज अ बेस, नॉट न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इट इज एब्स्ट्रैक्टिंग द प्रोटॉन, ठीक है? तो अब होगा क्या, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन जब ये कर रहा है यानी कि यहाँ से इस नाइट्रोमीथेन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, ठीक है? तो ये जो लीविंग ग्रुप है ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके नहीं निकल रहा है, इंस्टेड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के निकल रहा है, ठीक है? सो द लीविंग ग्रुप इज departing without the bonding electrons of the covalent bond, ठीक है? ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ये वाला कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है? आई बात समझ? तो दिस इज वन थिंग. वही अगर आप कार्बोकेटाइन का केस देखोगे, कार्बोकेटाइन वाली वीडियो में जाके चेक करना, तो वहां क्या हो रहा था आपके पास, दैट जो लिविंग ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट एनी
हेलाइड एटम इज अटैच्ड एज अ लिविंग ग्रुप, ये जो हेलाइड ग्रुप अटैच था वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, जो कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे उनको लेके बाहर निकलता था, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेके वो बाहर निकल रहा था, फिर आपकी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। वही अगर आप कार्बानाइन वाले केस में देखो तो जो लिविंग ग्रुप है वो विदाउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिपार्ट कर रहा है, दैट इज वन थिंग। सो दिस इंप्लाइज दैट एवरी कार्बानाइन हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इट कैन डोनेट, ठीक है। तो आपका जो कार्बानाइन है इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इट ऑल्सो एक्ट एज लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल, क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है डोनेशन के लिए, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। So the very first preparatory method is by the abstraction of hydrogen on a carbon atom alpha to nitro, cyano और carbonyl group with a strong base। अब देखो आपके पास कोई भी strong base हो सकता है, मान लो यहाँ पे NaOH की बात की है तो upon dissociation it gets dissociated to form Na positive and OH negative। अब यहाँ पे जो OH negative है it will act as a base, ठीक है। बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो बेस की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिलाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस। बेस क्या करेगा? इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब एब्स्ट्रैक्शन किसकी हो रही है? उस हाइड्रोजन की, उस प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन हो रही है जो आपके पास नाइट्रो, साइनो या कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हो, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके साथ जो एक हाइड्रोजन अटैच्ड है दैट विल एक्ट एज अल्फा हाइड्रोजन और वो निकल जाएगा यहाँ से, मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा कौन? ये बेस, ठीक है। तो वाटर निकल गया बाहर और पीछे आपके पास क्या रह गया? ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनाइन, ठीक है। सो यू कैन सी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेम एज वेल। सो ये एक एग्जांपल हो गया आपके पास। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया है जहां योर इथोक्साइड आयन इज अगेन एक्टिंग एज अ बेस, abstracting the proton from here resulting into this particular resonance stabilized anion and loss of alcohol as such. So this preparatory method you can use in your reactions further. So another reaction in the same case you can see when your ethoxide ion is reacting with acetaldehyde giving this particular resonance stabilized anion and ethanol as such. So that is the first preparatory method. The second preparatory method is by the abstraction of hydrogen of terminal acetylene with a strong base. So अगर आपके पास एक strong base हम use कर लेते हैं, for example over here we have used amide ion which is reacting with a terminal एसिटाइलिन। टर्मिनल एसिटाइलिन का मतलब क्या है कि उसके जो टर्मिनल ग्रुप के प्रोटॉन्स होंगे उनकी एब्स्ट्रैक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी एब्स्ट्रैक्शन करने के बाद ये तो अमाइडाइन से बन गया अमोनिया, ठीक है, और पीछे आपका क्या रह गया? एसिटाइलाइड एनाइन, ठीक है। तो ये कार्बानाइन यहाँ पे रह गया। अब देखो ये एक और मेथड हो गया, एक आपके पास मेथड और है, दैट इज बाय द एडिशन ऑफ nucleophile to alpha beta unsaturated compound. Okay, now what is alpha beta unsaturated compound? किसी भी functional group के साथ अगर आपके अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड है तो उस तरह के कंपाउंड्स को आप बोलोगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब होगा क्या? यहाँ पे भी आपका जो बेस है, सॉरी जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? वो अटैक करता है किस पे? उस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ठीक है। और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कब हुआ? जब यहाँ से इसका पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे शिफ्ट हो गया। ऐसा कब हुआ? जब आपका जो C ट्रिपल बॉन्ड N है यहाँ पे, वहां से आपका जो you can see over here, wait, let me just clean the slide first of all, this is just a lot to take. Okay, so let me repeat it for you. What I was saying is that you can see the example of acrylonitrile over here. What is happening exactly is, see, in case of acrylonitrile, when the central carbon is taking the pi electron towards itself, therefore it will make the previous carbon atom over here electron deficient and more susceptible to get attacked by the nucleophile ethoxide ion present over here, which results into the structure something like this.
ओके अब ये बन गया आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनाइन, क्योंकि यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, ये जैसे कि यहाँ पे आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, दिस नेगेटिव चार्ज कैन फर्दर गेट डिलोकलाइज्ड इन द एंटायर सिस्टम, समथिंग लाइक दिस। जब ये पाई जो आपका नेगेटिव चार्ज है, अगर आप यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन्स को इस कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट कर दोगे, सी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर, देन क्या होगा, यहाँ से एक pi electron from your C triple bond N will get shifted to the nitrogen like this and resulting into this particular resonance stabilized anion, ठीक है। तो अब जो पहले आपके पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब किसके ऊपर आ गया इस केस में, नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास एक और आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनाइन देखने को मिला आपको, एंड ऑल्सो विद द लॉस ऑफ इथेनॉल एज सच। सो ये 3 प्रिपरेटरी मेथड आप याद कर सकते हैं, एंड यू कैन अटेम्प्ट एनी ऑफ दीज व्हाइल आस्क्ड इन द पेपर। You need to remember all these 3 importantly. Okay, so next is the classification of carbanion. Carbanion, therefore, they classified just like carbocation as primary, secondary, or tertiary as per the carbon atom carrying negative charge is primary, secondary, or tertiary in nature. Simple सी बात है, मिथाइल कार्बन में सिर्फ आपके पास एक ही कार्बन है, which is however regarded as a special case. So that is methyl carbanion. Over here you can see the example of the same. Second one is your ethyl carbanion, जहां पे जिस कार्बानाइन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा है वो प्राइमरी हो गया, 2 लगे हैं तो सेकेंडरी हो गया, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो टर्शरी हो गया। सिमिलरली जैसे कार्बोकेटाइन का केस था वैसे ही है बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बानाइन। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है एग्जैक्टली, सिमिलरली लाइक योर कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के केस में देखो आपके पास क्या होता था, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता था आपको। लेट मी रीराइट इट फॉर यू, समथिंग लाइक दिस। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। In the center we have carbon atom, okay, like this, which is carrying positive charge and it has availability of empty p orbital like this. अब देखो होता क्या है, ये वाला कार्बन में पहले ही आपको बता चुकी हूँ, दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ओवर हियर। बट अब आप बात करेंगे अपने कार्बानाइन की, तो यहाँ पे आपका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ऐसा क्यों है, बिकॉज आपके पास पिछले केस में 3 बॉन्डिंग आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड थे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी थी और कोई लोन पेयर नहीं था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर्स की अवेलेबिलिटी थी एंड 0 लोन पेयर वर प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, देयर आर डेफिनेटली 3 बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज 1 लोन पेयर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों ही चेक करते हैं एंड देयरफॉर मेकिंग इट योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। समझ आई बात, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, चेकिंग द टोटल ऑफ योर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स present in that particular compound, ठीक है। So its structure is actually quite pyramidal. If you talk about the structure, it is simply pyramidal, just like your ammonia. Ammonia का structure भी आपके पास इस तरह से होता था, pyramidal structure देखने को मिलता था, बस उसी तरह आपके कार्बानाइन का structure होगा, ठीक है। And carbon atom carrying negative charge, as I discussed that before only, that it is sp3 hybridized, and 3 of the 4 sp3 hybridized orbital form 3 sigma bonds like this, you can see, and the 4th sp3 orbital contain lone pair of electrons. तो अगर आपसे पेपर में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए कभी भी कार्बानाइन का, तो उसे आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से जैसे आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड गिव इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन अलोंग विद इट, कि आपके इस पूरे स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है, किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल रही है। सो दैट इज अनदर डिफरेंस अमंग योर कार्बोकेटाइन एंड कार्बानाइन, कि कार्बोकेटाइन के केस में जो सेंट्रल कार्बन था वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज था, और यहाँ पे आपका जो केस है वहां पे सेंट्रल कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। सो आई होप ये समझ आया होगा आपको। चलते हैं आगे, इसी में हम डिस्कस करेंगे आपके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में एक और पॉइंट, दैट इज इवन सब्स्टिट्यूटेड कार्बानाइन ऑफ टाइप R1, R2, R3, C नेगेटिव आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव टर्म, समझते हैं सबसे पहले इसको। बेसिकली कोई भी ऐसा कंपाउंड विच इज नॉट एबल टू रोटेट
द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब एक तो पॉइंट आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, विच कंपाउंड विच डू नॉट rotate plane of polarized light is your optically inactive compound। और दूसरा क्या है कि बेसिकली ये आपकी नॉन सुपर इम्पोजिबल जो मिरर इमेजेस देगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल, समझेंगे अभी हम, लिख लो पहले इसको, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस वो होंगे आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है कि देखो, अगर आप इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो जो लोन पेयर यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड पे था वो अब आपका इस केस में तो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अगर आपने इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया तो ये तो आपका उल्टा हो जाएगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अब आपके इसके नीचे क्या आ जाएंगे, ये 3 बॉन्ड, और इस तरफ क्या है, इस लोन पेयर के नीचे इस साइड आ जाएंगे 3 बॉन्ड, तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, राइट। तो देयर इज द केस दैट व्हेन देयर आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ द कंपाउंड, दैट इज द केस ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, राइट। तो अमोनिया के केस में भी यही है और कार्बोनाइन के केस में भी आपको यही देखने को मिल रही है। यू कैन सी द इन्वर्जन ऑफ कार्बोनाइन एज वेल एज अमोनिया। सो ये तो होगी एक बात। फर्दर पॉइंट आपका चल रहा है अभी सेम टॉपिक पे, दैट इज ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइन ओनली। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा। सो ओवर हियर दे हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ अलाइल कार्बोनाइन, जिसे आप इस तरह से भी देख सकते हो, यहाँ पे साइड पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH single bond CH2 having negative charge on it on the carbon atom। ओके, अब देखो है क्या कि इसके जो p ऑर्बिटल था उसमें आपके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, बेसिकली दे आर सेइंग दैट कार्बोनाइन की प्लेनर ज्योमेट्री भी आपको देखने को मिलेगी। तो देखो कैसे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, so देखिए, when the lone pair of electron on the carbon atom carrying negative charge is conjugated with a multiple bond, अगर आप यहाँ पे देखो इस कार्बन को आपने कॉन्जुगेट किया है मल्टीपल बॉन्ड के साथ, उस केस में आप बोल सकते हो कि वो आपका प्लेनर केमिकल स्पीशीज है। अब वो कैसे, देखो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि देयर इज अकरिंग कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसी भी सिस्टम में अगर आपको कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है तो वो सिस्टम आपका कैसा हो जाता है, प्लेनर सिस्टम हो जाता है। ठीक है, सो विच इज वाई वन थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। देखो कि क्या है, इसीलिए आपकी जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, व्हाट दे आर सिग्निफाइंग दैट the lone pair of electrons they are completely delocalized in the entire system of allyl carbanion। ठीक है, सो ये बात होगी एक। This is due to the reason that the carbanion is stabilized by resonance to occur, ये जो मैंने आपको बना के बताया है यहाँ पे, and it is essential that the lone pair of electron must be in p orbital। तो अगर आपको यहाँ पे resonance stabilized इसको दिखाना है तो आपकी जो p orbital है यहाँ पे, उसमें ही necessary condition ये है कि उसी में आपके lone pair होने चाहिए, तभी आपका सिस्टम जो है resonance stabilized होगा यहाँ पे। ठीक है, thus in alternate planar structure the carbon atom carrying the negative charge is sp2 hybridized। so ये चीज होगी इसके बारे में एक। तो यहाँ पे हमने खत्म किया अपना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कार्बोनाइन में भी है, स्टेबिलिटी ऑफ द सेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। The very first example is of allyl and benzyl carbanion। allyl का तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया। देखो दोनों का केस में जैसे आपने कार्बोकेटाइन का देखा था ना कि दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज थे, सेम यहाँ पे होगा। यहाँ पे डिस्पर्जल हो रही है नेगेटिव चार्ज की, मतलब देयर इज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटायर सिस्टम ऑफ allyl and benzyl carbanion which leads to its ultimate stability। ओके, तो ये तो होगी एक बात। चलते हैं आगे। इसके स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो। I should not repeat the same that how the resonating structures are occurring, how they are resulting into the same। इसके लिए आपको रेजोनेंस का पता होना चाहिए, और अगर आपको वो भी नहीं मालूम है so I will mention the link where I have taught you the resonance related topics in the same description box below। ठीक है, तो आप ये दोनों भी देख सकते हैं कि कैसे आपके पास आया है, और हमने कार्बोकेटाइन में भी डिटेल में डिस्कस किया था, इसीलिए मैं यहाँ पे ये बार बार रिपीट नहीं करूंगी, वहां जाके इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ गया
सेम टॉपिक ही। ये एक आपका रीजनिंग क्वेश्चन बनता है आपके पेपर्स में, बोर्ड के GNDU हो, PU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ लिए जाते हैं ऑर्गेनिक में। फॉर एग्जाम्पल दैट वाई ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बानाइन इज स्टिल मोर स्टेबल देन द डाइफिनाइल मिथाइल एंड योर फिनाइल मिथाइल कार्बानाइन। तो रीजन इसका एक ही रहेगा, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ट्राइफिनाइल में मिलेंगे। बेटा सेम केस है जैसे आपने कार्बाकेटाइन में देखा था, ठीक है, एज कंपेयर टू योर रेस्ट ऑफ द टू। सो ट्राइफिनाइल में आप देख सकते हो यहाँ पे कितने आपको देखने को मिलेंगे, टोटल ऑफ 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। वहीं डाइफिनाइल में आपको टोटल ऑफ 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर आप अपना बाकी की बात कर लें, अगर आप जैसे आपका फिनाइल मिथाइल कार्बानाइन है तो उसमें आपको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा हो गया, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बानाइन इज मोर स्टेबल देन डाई विच इज मोर स्टेबल देन फिनाइल, लेट मी राइट इट, फिनाइल मिथाइल कार्बानाइन। तो इस तरह से आपने इसकी रीजनिंग प्रॉपर देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रॉ करने हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देन आपने बताना है कि इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू द लार्जर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दोगे, दोनों के ही करने हैं आपको, आपके ट्राई के भी और डाई के भी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बानाइन। अब देखो, अगर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो वो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बानाइन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होगी आपकी इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब देखो, एक तो ये कार्बानाइन है आपके पास, ठीक है, उसके साथ आपके ऑर्थो या मान लो पैरा पोजीशन पे आपने लगा दिया कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई भी लगा दो, मिथॉक्सी ग्रुप लगा दो, CH3O यहाँ पे जैसे लगे, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। भाई इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बहुत है, और अगर आप किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा, कोई भी चीज की अवेलेबिलिटी, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, राइट। सो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो डेंजरस इन दिस केस, बिकॉज इंटेंसिफिकेशन होती जाएगी ज्यादा ज्यादा नेगेटिव चार्ज की, और ये पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ। सो ये बहुत इजी है समझने के लिए कि आप अगर आप कार्बोकेटाइन वाला केस याद करो तो वहां क्या होता था, उल्टा होता था। वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने लगे होते थे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती थी, ठीक है, बेंजाइल के जितने कम लगे होते थे उतनी कम स्टेबिलिटी होती थी। तो दिस इज द थिंग ओवर हियर। और जितने ज्यादा यहाँ पे कार्बानाइन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे, फॉर एग्जांपल CnNO2, दैट इज नाइट्रो, साइनाइड, एल्डिहाइड, acid at ortho para position, it tends to stabilize the benzyl carbanion by dispersal of negative charge due to its minus R effect, ठीक है। So that is one thing over here। और इस केस में आपका क्या लग रहा था, प्लस R effect लग रहा था यहाँ पे, कहाँ, जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात कर रहे थे। तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए अभी तक, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बानाइन। देखो सीधी सी बात है यहाँ पे, व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपाउंड और एनाइन इज अनयूजुअली स्टेबल, द रीजन इज दैट कि ये एरोमेटिक है, ये सिस्टम आपका है एरोमेटिक। और एरोमेटिसिटी के लिए आपने हक्कर रूल आपको पता होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कर रूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास n में मान लो आपकी 1 वैल्यू डाल दिया आपने, तो मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पे है क्या, फॉर सिस्टम टू बी एरोमेटिक 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है यहाँ पे, 2 यहाँ से आगे, 2 यहाँ से आगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। तो यस, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच लीड्स टू इट्स अनयूजुअल स्टेबिलिटी। बाकी आप देख लोगे, दूसरा केस आपके पास आ जाएगा, इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, आपकी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है चार्ज की यहाँ पे। तो इस वजह से भी आपकी जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बानाइन है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी है। एक पॉइंट कौन सा आ गया, एरोमेटिक का, वो पूरा एक्सप्लेन करोगे आप, आपकी बुक्स में, मॉडर्न की बुक में कंप्लीट इसकी जस्टिफिकेशन गिवन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप क्या दोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आप क्या देखोगे कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस देयर, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग ओवर हियर। चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज आर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानाइन कैरिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो
the carbanion which is carrying electron withdrawing group, they are all resonance stabilized. For example, in first case आपका aldehyde group लगा है, ठीक है, कार्बानाइन के साथ. सेकंड में नाइट्रो ग्रुप लगा है. थर्ड में आप देख सकते हो आपका एसिटो एसिटेट ग्रुप लगा है यहाँ पे, सॉरी दिस वन, ठीक है, दोनों साइड देख लो आप, दो ग्रुप्स लगे हैं यहाँ पे, मेकिंग इट मोर एंड मोर स्टेबल. तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी उतनी ही ज्यादा आपको अल्टीमेट स्टेबिलिटी पूरे के पूरे सिस्टम की देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है. तो ये बहुत ही इजी एग्जांपल है यहाँ पे. अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगेन बनाने आते हैं आप इजिली ये कर लोगे, ठीक है. देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन कैरिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स. अब देखो यहाँ पे दो और एग्जाम्पल है हमारे पास. Let me change the color. That is the malonic ester carbanion and ethyl cyanoacetate carbanion. बेटा अगर आपको इनके स्ट्रक्चर्स याद होंगे ना, आप बहुत इजीली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो. आपको पता है कि कैसे आपने उस कार्बनाइन की जो नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है उसकी डीलोकलाइजेशन पूरे सिस्टम में दिखानी है. अगर आपका इस तरफ लेट मी इरेज, अगर आपका इस साइड आपकी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. अगर उल्टा केस है, अगर यही इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ शिफ्ट होने को देखने को मिलेंगे आपको, तो ये वाला केस देखने को मिलेगा. सो दैट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजीली आप काम करोगे. एंड आई गेस बाय मिस्टेकनली आई हैव स्किप्ड द two topics of stability only, that is the inductive effect and types of hybridization. So let me complete those two also for you, and let me take another slide. Okay, so हमने direct I guess resonance effect से ही start किया था. My bad for that only. Stability का जो आपका topic है, जो आपका कार्बानाइन का, वो basically आपका start होता है inductive effect से, ठीक है. साथ साथ में प्लीज मेक द प्रॉपर नोट्स. मैं आपको सिर्फ इसकी एक जस्टिफिकेशन दूंगी, आपको बाकी कुछ समझ आ जाएगा. तो इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो आपका कार्बनाइन के केस में जो आपका सीरीज बनती है स्टेबिलिटी की, वो ये है where your methyl carbanion is more stable than primary, which is further more stable than secondary or tertiary कार्बानाइन. और अगर आपको याद आएगा तो कार्बोकेटाइन के केस में उल्टा केस होता था, वहां पे टर्शरी ज्यादा स्टेबल था, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एंड देन मिथाइल, ठीक है. बच्चा ये बात हो रही है आपके कार्बोकेटाइन की, मिक्स नहीं कर देना उसको, ये कार्बानाइन की बात हो रही है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो. लेट मी इरेज इट फॉर यू. ओके, सो आई होप इतना आपको समझ आ गया, ठीक है बच्चे. अब ये ऐसा क्यों है, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे हम एक एक करके. Let us draw the structure of the same. ये है आपका मिथाइल कार्बानाइन, ठीक है. ये ज्यादा स्टेबल है आपका प्राइमरी कार्बानाइन से, ठीक है. ये फर्दर ज्यादा स्टेबल है आपका सेकेंडरी कार्बानाइन से, और ये आपका फर्दर ज्यादा स्टेबल है टर्शरी कार्बानाइन से. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है. और अगर आपको याद हो, मैंने आपको अभी थोड़ी पिछली स्लाइड्स में बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे यहाँ पे तो आपका वो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है. और अगर नहीं लगे होंगे तो वो सिस्टम स्टेबल होगा. तो यहाँ नहीं लगे हैं तो ये सिस्टम स्टेबल है, अल्टीमेटली मेकिंग इट मोर एंड मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द 3. इस केस में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यहाँ 2 लगे हैं, यहाँ 3 लगे हैं. तो जिस केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है वो आपका सबसे कम स्टेबल कार्बानाइन होगा, ठीक है. ये तो हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. ये सारे के सारे कौन से इफेक्ट शो कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, ठीक है. तो इंडक्टिव इफेक्ट आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो दैट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप द इंटेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम increases. I repeat, the intensity of the negative charge on central carbon atom increases, and due to this intensification of negative charge, it leads to the instability of the negative charge, and greater will be the intensification, hence more stable is the
more unstable is the कार्बानाइन. ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको. नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो बेसिकली ये दो पॉइंट्स के बाद आपका शुरू होता था रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबिलिटी में. ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट है. प्लीज साथ साथ में नोट्स बना लीजिएगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. से सिंपल सी बात है यहाँ पे, इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हाट इज हैपनिंग, एग्जांपल लेके बात करेंगे. ये है आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कार्बानाइन. ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड है ये. अब नेक्स्ट आपका जो है that is sp2 hybridized carbon. Next is going to be definitely sp3. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. In this case your S character is 50%. 50% S character. Over here S character is 33%. Over here it is 25% S करेक्टर. सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा नेगेटिव जो कार्बन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज के ऊपर जितना ज्यादा S करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, उतनी ही ज्यादा कार्बानाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी. बस आपको ये याद रखना है. तो यहां लिख सकते हो मोर S करेक्टर, मोर S करेक्टर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानाइन. ठीक है बच्चे, तो ये तो होगी आपकी एक बात. ठीक है, क्यों? सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस. इस केस में आपका जो है इलेक्ट्रॉन दे आर मोर एंड मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड हेंस ऑफ लोअर एनर्जी, विच इज वाई मेकिंग इट मोर एंड मोर स्टेबल कार्बानाइन. ठीक है, जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानाइन. तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को फुल स्टॉप करते हैं. यहाँ पे हम करेंगे अपना कार्बानाइन बाइंड अप. ठीक है, तो कार्बानाइन में हमने क्या क्या देखा, उसकी प्रिपरेशन देखी, उसकी जनरल इंट्रोडक्शन देखी, क्लासिफिकेशन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टेबिलिटी. इन द स्टेबिलिटी वी हैव सीन इंडक्टिव, your hybridization, your resonance effect and all, and we have discussed various points in resonating effect. So आपको वो सब के सब ध्यान में रखने हैं. बहुत से रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं इससे. And if you have any sort of queries and any sort of issues related to the same, please mention down in the comment section below, and do subscribe my channel, press the bell icon for latest updates, and yeah, thank you.